Hello everyone, this is Shubhangi Agrawal. Thank you for watching my video. And as I have uploaded chapter number 1st and 2nd and 3rd lectures, so please do watch it. And today we will be covering chapter number 4, that is corporate level strategies. So guys, I request you all to open your books and let's get started. Okay. So in the last lecture, I have told you that strategies are formulated at each level of organization. Okay. So what were the each level of organization if you talk about that were first is functional level, second is business level, and third is corporate level. So in this chapter, we will be studying about the corporate level strategies. Okay. So yeah. And then the introduction part is over. Then typologies of strategies. So in this, what is written over here? It is written over here that there are 4 generic strategies. Generic strategies means that they are applicable for all organizations. So what are they? They are stability, growth, retrenchment, and combination. That we will be studying later in this chapter in detail. So right now, just the names, and I will tell you about it. Obviously, अच्छे से. And then okay, so these strategies, they generic strategies. They are also known as grand strategies and directional strategies. So that's an important thing to remember for MCQs. So what are they known as? Grand strategies or directional strategies. Okay. And Michael E. Porter, he suggested competitive strategies. So competitive strategies includes three things. Okay. First is cost leadership, second is product differentiation, and third is focus strategy. And focus strategy is then divided into 2 parts, that is cost leadership and product differentiation. So I will be telling you in short what are they. Maybe we will discuss it later in the chapter. Okay. So first is cost leadership. Cost leadership means like if you want to increase the market share, and if you want that the customer who are price sensitive, they come to you. So you follow this strategy. In this strategy, what you do, you lower down your price of the product or service, then you attract the customer for it. So in this, they apply this technique. Okay, so maybe for example, if I say that Walmart, suppose, or if you talk about the phones brand that is Xiaomi or Oppo or Vivo, they follow these techniques. Like that is these phones, they are not very costly. They are reasonable so that many people can afford. So they don't want that only a certain portion of the customers they are attracted towards it. They want that the larger number of customers, they are attracted towards their product. Okay, so they don't specify on the product, that is they don't make it very unique or maybe very different, but the thing is they just lower the price of it. So that's the thing. And second is product differentiation. If you talk about product differentiation, then only one thing comes to my mind, that is Apple phones. Okay, Apple phones, and like if you talk about iPhone, that is, so they have specifications. They have a certain category of customer base. Okay, so they provide better security and better features. So they don't see okay the price should be lowered. They focus more upon the brand value, and they work towards it more. Okay, so that's the thing. And if you talk about focus strategy, so focus strategy means like the strategy, the organization moves towards those things which are not discovered or which are not the market. They work in that market which is unexploited. Okay, so they suppose there is a market which is not yet discovered, but the customer need for it is more. Then they will shift their focus toward that market, and that is known as focus strategy. But in this also, it is categorized into 2 parts. It can be cost leadership or it can be product differentiation. It depends upon them what they do. Okay, so these were the things. These were the grand strategies, and they're like the competitive strategies, that includes these 4 things. Okay, but if you talk about functional strategies, so functional strategies, that are the strategies that are formulated at functional level. So in this, what they do, they comply, they coordinate with the corporate level strategies, and these strategies at functional level, they actually improve the quality. And I think in the 2nd chapter we have discussed that at the functional level, whatever the strategies are implemented,
that actually creates value addition, or that actually creates competitive advantage. So in this we will be studying that. I don't think so like much detail is given in this chapter, but okay, so like it is given that marketing, financial and human resources, logistic and production. So these are what, like in production we will think like the organization will try to minimize its cost and will try to improve the quality of the product. So these are the actually strategies that are followed at functional level, and marketing also, and like financial also, that the best sources are are selected, and the best thing. And for HR, that is human resources also, that is they have to create some strategies or some things so that the employee in their organization they stay longer, and the recruitment cost and all that is reduced. So it is only the stuff. And then guys, just read about this thing, that is the basic of classification. Then we will be discussing the rest of the matter. Okay. So guys, so I hope आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि क्या क्या है इसकी क्लासिफिकेशंस एंड टाइप्स. सो इट्स नथिंग लाइक लेवल के बारे में बता रखा है, कॉर्पोरेट level and business level and functional level, that I have told you. We already know what are the 4 stages for business life cycle. So you know that, right? सबसे पहले क्या, introduction, then growth, then उसके बाद फिर आपका जो stability stage होता है, then decline stage. That we have हाँ, so that we have discussed in chapter number 2. Okay. सो अब जो है इसमें पता है आगे कुछ भी नहीं है. इसमें बस क्या लिख रखा है उन्होंने, स्टार्टअप के बारे में बता रखा है कि स्टार्टअप जो है या तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी मतलब फॉलो कर सकता है, या फिर कोलैबोरेटिव स्ट्रेटेजी. ओके, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी हम जस्ट पीछे पढ़ा, ठीक है. कोलैबोरेटिव स्ट्रेटेजी क्या होता है? कोलैबोरेटिव स्ट्रेटेजी जो होता है ना, वो मतलब होता है एक बिजनेस दूसरी बिजनेस के साथ कुछ कोलैबोरेशन करता है. कोलैबोरेशन कैसे हो सकता है, यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, ज्वाइंट वेंचर से हो सकता है, मर्जर से हो सकता है, एक्विजिशन से हो सकता है, या स्ट्रेटेजिक अलायंस हो सकता है, ठीक है. तो इन्होंने बताया स्टार्टअप के लिए व्हाट विल बी बेनिफिशियल. तो उन्होंने बता रखा है कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी ज्यादा मतलब सही रहेगा, बिकॉज ग्रोथ मतलब स्टार्टअप जो है वो ब्रेक इवन चाहते हैं, क्योंकि बस ब्रेक इवन स्टेज आ जाए, जिससे उनका लाइक ना अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कम से कम लॉस तो ना हो, ठीक है. तो उसके लिए वो परस्यू नहीं करते हैं कि मतलब ग्रोथ स्टेज, वो चाहते हैं कि बस उनका भी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज ही मतलब वो यूज करते हैं, ठीक है. बट हाउएवर जो गोइंग कंसर्न जो है वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी भी कर सकता है, कोलैबोरेटिव भी कर सकता है, ठीक है. अब ये भी बता रखा है कि इन्होंने, शायद मैंने आपको पीछे भी बताया था ऑब्वियसली, कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज जो होते हैं उनको हम लोग ग्रांड स्ट्रेटेजीज भी बोलते हैं, ग्रांड. हाँ, और जो लेवल बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज जो होती हैं वो क्या होता है, एसबीओ के लिए होती हैं. लाइक हर एक एसबीओ के लिए अलग अलग होती है, तो उसको फॉर्मुलेटेड एट मतलब हर जो एसबीओ है उसके हिसाब से वो बनती है, ठीक है. फंक्शनल स्ट्रेटेजीज के बारे में बता रखा है आपको पीछे. वैसे भी बिजनेस और फंक्शनल लेवल जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग जो है ये 4 स्टेजेस, तो मैं 4 जो स्ट्रेटेजीज आपको बताई थी, दैट इज स्टेबिलिटी, और फिर एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट और ये वाला कॉम्बिनेशन. तो उसमें से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सही है. सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी स्टेज, ठीक है. स्टेबिलिटी स्टेज कौन सी स्टेज होती है? इसमें हम लोग ना मतलब थोड़ा हम सेफली खेलना चाहते हैं, ठीक है. हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लाइक एक्सपेंड करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. हम लोग बस चाहते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग को स्टेबिलिटी चाहिए. तो मतलब जो एग्जिस्टिंग जो अपना इंटरेस्ट है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है, अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, बस उसमें ही हम कंटिन्यू करना चाहते हैं. अभी हम लोग वो आगे एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं. बट इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती. इसमें ग्रोथ होती है, इसमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ होती है, ओके. तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि क्यों मतलब ली जाती है, परस्यू कब करता है स्टेबिलिटी ये स्ट्रेटेजी. तो जब उनका सिमिलर मार्केट, सिमिलर प्रोडक्ट, एज आई हैव टोल्ड यू दिस. बट इसका स्टेबिलिटी स्टेज का स्ट्रेटेजी का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ करते हो, वरना तो फिर स्ट्रेटेजी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना, अगर आप कुछ भी छोटा मोटा भी लाइक इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं करोगे. तो ये सब कुछ बता रखा है. कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बता रखा है कि सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट, लाइक सेफली ओरिएंटेड खेलना चाहते हैं. नो रीडेफिनेशन जो है वो कोई नहीं होता है, रिस्क बहुत कम होता है. और रीजंस पता है कि क्यों होते हैं. लाइक अगर ऐसा है कि आपकी मेच्योरिटी स्टेज आ गई है, ऑलरेडी आप मेच्योरिटी स्टेज पे हो, तब जो है आप ये वाली स्ट्रेटेजी लेते हो, या फिर आपको थोड़ा मतलब कम रिस्की लेना है तब आप ये वाला करते हो, या फिर आपको जो एक्सपेंशन जो वो थ्रेटनिंग लगता है तब, या फिर जो कंसोलिडेशन मतलब आप चाहते हो कि थोड़ा बाद में हो, लाइक अभी हम थोड़ा स्टेबिलिटी कर लें, फिर अपने फंड्स वगैरह हम इकट्ठे कर लें, फिर बाद में हम उसको एक्सपेंड करेंगे. तो ये चीज है, ओके. सो गाइज जस्ट आप उसका ग्रोथ वाला भी पढ़ लीजिए. सो जस्ट आई विल टेल यू, ओके. जस्ट एक बार. हाँ गाइज, तो ग्रोथ या फिर एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में क्या होता है, इसमें जो है ना मतलब जो बिजनेस जो है वो
वो इट वांट्स टू ग्रो, मतलब अपना एक्सपेंड करना चाहता है, ठीक है। अब लाइक स्टेबिलिटी, लाइक जो स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं ना, वो लाइक दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि हाँ जो हमारा हो रहा है बस उससे हम कर लें। दे वांट कि कुछ लोग ज्यादातर, आई थिंक दिस इज द मोस्ट पॉपुलर जो वो होता है स्ट्रेटेजी, जिसमें आपका एक्सपेंशन होता है। आपको लगता है कि हाँ अपना रिस्क थोड़ा हम ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क एंड ऑल द थिंग। तो आप रिस्क लेते हो इसमें ज्यादा, आप ज्यादा अपने लाइक फंड्स मतलब एक्वायर करते हो, ठीक है। इसमें आप रीडेफिनेशन करते हो, रीडिफाइन कर देते हो अपना बिजनेस को, अपनी जो विजन्स वगैरह को होते हैं उनको आप चेंज करते हो, ठीक है। इसमें आप अपने न्यू ब्रांचेस, न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हो, या न्यू ब्रांचेस लगाते हो, न्यू प्रोडक्ट्स को मतलब अपना करते हो लॉन्च। उसके बाद इसमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ तो है ही, मतलब वो तो स्टेबिलिटी में भी होती है, बट इसमें एक सब्सटेंशियल ग्रोथ होती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस लाइक बहुत कम ग्रोथ हो रही है, इसमें आप बहुत ज्यादा ग्रोथ के लिए आप परस्यू करते हो, तो वो चीज है ये, ठीक है। और ये बड़ी हाईली वर्सेटाइल भी है, और उसके बाद मतलब इसमें बहुत ज्यादा लाइक एक मैं बताती हूँ मैं, हाँ ठीक है, ये बहुत डायनेमिक वगैरह भी है। तो ये सब चीजें तो ऑब्वियसली होंगी, तो यहाँ पर हमने इसके बारे में ज्यादा पढ़ लिया कि क्या क्या चीजें हैं। अब ये तो था ग्रोथ, और इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था ये सब मैंने आपको बता दिया है। इसमें अब कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया था कि रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस होता है। उसके बाद सेकंड में बताया था कि ऑपोजिट ऑफ ये स्टेबिलिटी जो स्ट्रेटजी उसकी है लीड टू बिजनेस ग्रोथ है। फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू बिजनेसेस ऑब्वियसली चाहिए होगा, ठीक है। हाईली वर्सेटाइल स्ट्रेटजी है, एज आई टोल्ड यू, ये चीज हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मेजर रीजंस क्या होता है ना कि आपका जो है ना इट मे बिकम इम्परेटिव व्हेन आपका ना इन्वायरमेंट जो है जहां पर आप रह रहे हो वो आपको डिमांड करता है कि आपकी एक्टिविटीज में पेश आए। आपको इतनी आई थिंक अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कस्टमर्स आपका और चाहते हैं चीज, या फिर आप खुद देख रहे हो कि बहुत ज्यादा मार्केट में अभी पोटेंशियल है। तब आप क्या करोगे कि आपको डिमांड कर रहे हैं कि आप अपनी एक्टिविटीज जल्दी जल्दी करो, तो वो चीज है यहाँ पर। एक रीजन ये बन जाता है आपका एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के लिए। एक बन जाता है कि स्ट्रेटेजिस्ट, ये वाला मैंने पॉइंट आपको बता दिया है कि मे फील मोर सेटिस्फाइड विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। फिर एक्सपेंशन में लीड टू ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट। अब जो है ना आपका लाइक इफ यू वांट टू मतलब मेंटेन अ होल्ड, और इफ यू वांट टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, तब आपको ये करना ही पड़ेगा। फिर एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज द ओनली ऑप्शन। और जो है आपको मतलब अपना ग्रेटर कंट्रोल चाहिए मार्केट पे, और कॉम्पिटिटर्स को भी हटाना है। आपको लग रहा है कि हटाओ, मतलब उसको भी, उस पर भी लाइक ना उस पर भी ज्यादा आप अपना कंट्रोल पाओगे, तब कैसे होगा? वो सिर्फ इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। बट और एक और चीज, अगर सपोज आपके पास एक्सपीरियंस कर्व है और आपके पास ना एक स्केल ऑफ ऑपरेशन है, तो वो अपनी इतनी बड़ी जो चीज है आप उसको क्यों नहीं उसका एडवांटेज लोगे? वो तब भी उसका एडवांटेज लेके आप अपना एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज करते हो, ठीक है। अब ये टाइप्स ऑफ जो है टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिए। मैं आपको लाइक इसको थोड़ा ब्रेक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स वगैरह भी मैं आपको देती हूँ, ठीक है। जस्ट रीड इट। सो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज। तो सबसे पहला जो एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब ना डाइवर्सिफिकेशन का सबसे पहले मतलब क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, न्यू मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू द लाइक ना थोड़ा सा कस्टमर बेस भी चेंज हो जाता है आपका। लाइक ऐसा नहीं है कि सपोज आपका पहले कस्टमर बेस, सपोज इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ आईटीसी, ठीक है। सो आईटीसी फ्लावर भी बनाता है, आईटीसी जो है वो भी बनाता है आपका हाँ क्लासमेट्स वगैरह जैसे आईटीसी के हैं सारे, तो स्टेशनरी आइटम्स बनाता है। आईटीसी सिगरेट्स वगैरह भी करता है। तो ये सबका कस्टमर डिफरेंट है ना, तो ऐसा नहीं है कि जो इसके कस्टमर्स हैं वो रिलेटेड होंगे। तो फिर डाइवर्सिफिकेशन के इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या होता है कि न्यू डिफरेंट स्किल्स नीडेड होती हैं, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज होता है, एंड न्यू डिफरेंट कस्टमर बेस भी बन जाता है। एंड मतलब थोड़ा सा रिलेटेड अगर होगा भी रिलेटेड ना, तो बहुत कम रिलेटेड होगा जो प्रेजेंट जो प्रोडक्ट लाइन है उससे। इफ यू टॉक अबाउट अगर आप न्यू स्टैब्लिश करने वाले हो, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, ठीक है। और कॉन्ग्लोमरेट जो डाइवर्सिफिकेशन होता है उस एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन में भी कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन अगर इफ आई टॉक अबाउट, तो वो सारी जो अभी आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी ना, वो सारी एक्चुअली उस पर सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। और जो इनोवेटिव और क्रिएटिव फर्म्स जो है ना, वो लाइक अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस देखती रहती हैं कि वो चाहती हैं कि उनको ग्रोथ के लिए उनको मौका मिले। तो ग्रोथ कैसे मिलेगा? ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा जो चीज जो होती है ना, वो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हो पाती है, ठीक है। तो बस ये सब चीजें हैं डाइवर्सिफिकेशन को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। बट उन्होंने फिर ये भी बताया कि अगर आपको एक्सपेंशन और ग्रोथ या कुछ करनी है, तो फिर या तो आप इंटेंसिफिकेशन करो या फिर डाइवर्सिफिकेशन करो, ठीक है। अब इंटेंसिफिकेशन क्या होता है? आपको याद होगा कि एनसॉफ का हमने पढ़ा था, तो वो एनसॉफ का सेम ही है, बस इसमें जो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो लास्ट पॉइंट की जगह यहाँ पर सेकंड हेडिंग बन गया, सेम ही है बट, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। सबसे पहले इंटेंसिफिकेशन, तो अब मैंने आपको इसे एक्सप्लेन कर दिया था, बट स्टिल
अब मैं आपको जो एक बार बता देती हूँ क्या क्या था। मार्केट पेनिट्रेशन था, और लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट था, और मार्केट डेवलपमेंट था। ठीक है, मार्केट पेनिट्रेशन एज आई टोल्ड यू, एज आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ वो कैडबरी, तो आप उसका ले लो, या फिर आप जो है नैनो का ले लो। अगर नैनो है, और नैनो में उन्होंने पता थोड़ा सा चेंज किया, बस थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया, नैनो ऑसम बना दी। तो लाइक वो चेंज ज्यादा नहीं हुआ उस पर, बस थोड़ा सा चेंज करा। लाइक जो कैडबरी का था, उसके चॉकलेट जो लूज जो मिल रही थी, अब वो लाइक वो एक पूरा कैडबरी सेलिब्रेशंस में अगर बन जाता है तो वो एक मार्केट पेनिट्रेशन होता है। लाइक थोड़ा सा चेंज, बट उससे आपका डिफरेंट लाइक, तो वो चीज है। यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट पेनिट्रेशन में क्या बताया कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, बस थोड़ा सा उसमें हम चेंज करते हैं, ये चीज है। उसके बाद फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट सॉरी। तो मार्केट डेवलपमेंट में अब अगर आप वैसे, अगर मैं वैसे बोलूं सिर्फ बोलने के लिए, लाइक नॉट बोलने के लिए, बट अगर मैं वैसे बताऊं सिंपली होता क्या है, तब तो ये है कि अगर मैंने आपको जैसे हल्दीराम का एग्जांपल दिया था कि वो अब इंडिया से अब फॉरेन कंट्रीज में भी जा चुका है, तो वो मार्केट डेवलपमेंट हो गया कि उसने अपना वो कर दिया। बट हम एग्जाम में बस ये तो लिख नहीं सकते ना कि लाइक फॉरेन कंट्री में जाना, या फिर जैसे ना एक्सपेंडिंग द एरिया, ऐसे तो कुछ लिख नहीं सकते। प्रॉपर लैंग्वेज चाहिए होगा। तो हमको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ मार्केटिंग प्रेजेंट प्रोडक्ट टू कस्टमर्स इन रिलेटेड मार्केट एरियाज। लुक, ये क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है मार्केटिंग के प्रेजेंट प्रोडक्ट के। हम लोग प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं, जो मार्केट जो अभी जो प्रेजेंट जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग के बारे में ये बात करता है। और इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि कस्टमर इन रिलेटेड मार्केट एरियाज। ठीक है, तो कस्टमर्स जो है रिलेटेड मार्केट एरियाज, ऐसा नहीं है कि कस्टमर का बेस ही चेंज हो जा रहा है। अगर सपोज आप लाइक हल्दीराम का देखो, तो अगर वो फॉरेन में अगर जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो कस्टमर्स जो खाने वाले जैसे जो लोग थे वो चेंज हो गए। अब कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब यहाँ से अब वो दूसरे जो लाइक सपोज अब KFC है, तो अगर उसका मतलब सेम भी हो सकते हैं, बट अगर थोड़ा डिफरेंट है उनका कस्टमर बेस, तो वो बिल्कुल चेंज ही हो गया, ऐसा नहीं होता ना। तो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि रिलेटेड मार्केट, वो कस्टमर रिलेटेड मार्केट में होंगे, बट क्या होगा, बाय एडिंग डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स डिफरेंट हो गए। ठीक है, फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो उनका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो गया, उनका कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग थोड़ा डिफरेंट हो गया, प्रमोशनल मीडिया जो है वो सब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइक सपोज शाओमी, या फिर जो आपका वीवो, या फिर ये है ना, ये थोड़ा थोड़ा अपना चेंज करते रहते हैं, प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करते रहते हैं, तो वो हो गया। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे मारुति अपने कार्स लॉन्च करती रहती है, लाइक थोड़ा सा चेंज करा उसने, एक कार लॉन्च करी, थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली थोड़ा ज्यादा चेंज करा, नॉट थोड़ा सा में क्या होगा, आपका मार्केट पेनिट्रेशन हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं, बट इसमें ज्यादा होगा। सपोज एक उसने कार लॉन्च करी, फिर उसने दूसरी कार लॉन्च करी, तो वो एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो हाँ ये हो जाता है आपका। ठीक है, और इसमें सपोज आप अगर वैसे भी अगर आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, लाइक HUL है, HUL अगर अपने सोप्स करता है, लक्स भी उसका ही है, या फिर जो है उसका लाइफ बॉय या कोई भी है, तो उसके बाद अगर उसने डव कर दिया, तो वो एक तरह से उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, उसने प्रोडक्ट अपना चेंज कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन का लाइक मैं आपको शॉर्ट में तो बता सकती हूँ, बट आई वांट कि थोड़ा आपको डिटेल में मतलब बताऊं, तो आप लोग भी इसको रीड कर लेते हो, और वैसे मैं भी कर ले रही हूँ। ठीक है, तो फिर मैं अच्छे से बताती हूँ। ओके, हाँ, सो इसमें क्या है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन में आई हैव टोल्ड यू कि कॉन्ग्लोमरेट जो है वो तो बिल्कुल अलग हो गया, दैट इज अंडररेटेड। बट यहाँ पर 3 और भी चीजें होती हैं, दैट इज 3 डाइवर्सिफिकेशन और भी होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं। सो वो हम पढ़ने वाले हैं। दैट फर्स्ट क्या है आपका, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। तो अब हम वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा कि रिलेटेड है। सेकंड, इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो होता है ना इंटीग्रेशन, उससे मतलब उसकी बात करता है। अब मैं बताती हूँ आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है। ओके, सो सपोज ना आप ना सपोज कोई किसी चीज के मैन्युफैक्चर करते हो। ठीक है, आप सपोज किसी कार की लेते हैं हम एग्जाम्पल, कि कार आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके लिए आपको टायर, उसका जितना भी उसका मतलब जो भी आपको चाहिए होंगे उसका, और जो इंजन्स वगैरह आपको सब चीजें चाहिए होंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप खुद ही बनाते हो, वो आप ज्यादातर क्या करते होगे कि वो किसी और से खरीदते होगे। सपोज TVF से उसके टायर खरीद लिए, और किसी और कंपनी से उसकी AC और जितने भी और सारे जो पार्ट्स होते हैं वहां से आपने खरीद लिया। और उसके बाद फिर आप जब सेल करते हो उसको, तो आप लोग किसी कार में भी अपने किसी लाइक आप होलसेलर और रिटेलर ऐसे करके आप किसी शोरूम पे बेचते होगे। बट अब आपने सोचा कि मैं ना खुद ही मतलब बनाता हूँ, मैं खुद ही बनाती हूँ, मैं अपना जो मैन्युफैक्चरिंग जहां से मैं इनपुट जो प्रोवाइडर्स हैं उनको रिप्लेस करके मैं खुद बना लेती हूँ। और जो मेरे जो तो दैट इज जो इनपुट वाले जो प्रोवाइडर्स होते हैं उनको रिप्लेस करके जो खुद बनाना हो जाता है उसको बोलते हैं आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, और जो आपका
जो आप सेल जब करते हो तब डायरेक्टली खुद ही आप सेल करने लग जाओ। लाइक बीच के जो होलसेलर और जितने भी सप्लाई चेन के जो लोग थे उनको आप हटा दो, उनका सोचते हो कि फालतू में हम क्यों प्रॉफिट दें, तो वो चीज जो आती है वो जाती है आपको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज लेदर शूज बनाते हो, लेदर शूज बनाने के लिए आपको लेदर वगैरह चाहिए होगा, तो लेदर वगैरह चाहिए होगा तो आपने सोचा कि अब ये सब चीजें जो है मैं खुद ही अपने आप ही लेदर वगैरह मतलब उसको अरेंज करूंगी, मैं कहीं और से उसको खरीदना नहीं है मेरे को, वो हो गया। और जब सेल करूंगी तो मैं अपने आप से खुद अपने जो आउटलेट्स अपने मतलब ओपन करूंगी, मैं कहीं किसी मैन्युफैक्चरर किसी होलसेलर वगैरह पे या किसी रिटेल शॉप पे नहीं करने वाली। दैट इज लाइक बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम डाइवर्सिफाई जब करते हैं तो हमारा जो हमारा बिजनेस जो है ना, हम उसके आगे जो प्रोसेस जो हो रही है, लाइक इनपुट जहां से हम ले रहे हैं और जहां से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उन सब चीजों में भी अपना लाइक हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अभी तक तो बस हम ये चीज बना रहे थे ना कि हम लोग ले रहे थे, उसके बाद अपने आप एक लेदर शूज बना रहे थे, फिर बेच रहे थे। बट अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, सपोज मैन्युफैक्चरिंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं और हम फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हम सेल तक सब चीजें हम खुद कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं ना, मतलब हमने डाइवर्सिफाई करा ना यहाँ पर, तो ये चीज हो गया। यहाँ पर वर्टिकल मतलब ऐसे है ना, वर्टिकल हाँ, तो वर्टिकल मतलब ऐसे है। तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि वर्टिकल में अपने क्या करा, अपने मैन्युफैक्चर से भी ले लिया, उसके बाद हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो भी अपने एक्वायर कर लिया। एक और एग्जाम्पल जो है वो है अमूल का। ठीक है, अमूल ने ना अपना खुद की जैसे अपनी काउज एंड बफेलोज जो भी है उसने अपने खुद ओन करता है वो, और खुद ही वो अपने उससे मतलब जैसे अपने ऐसे मिल्क जो हुआ उसको खुद ही सेल करता है। अब सेल करने के लिए ना एटीएम भी आते हैं, अमूल एटीएम, मतलब बस आप अपना कॉइन या रुपीज वगैरह डालो और फिर आपका वो पैकेट आ जाएगा। तो वो क्या हुआ, उसने मतलब बैकवर्ड भी कर लिया लाइक बफेलोस वगैरह पुट करके, एंड फॉरवर्ड भी कर लिया। दैट इज नोन एज आपका इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब आपको। जस्ट रीड इट, यही लिखा है जो मैंने आपको बोला है। ठीक है, और उसके बाद फिर अब आप रीड कर लीजिए हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, ये आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, हाँ, सो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, इसमें आप ना क्या करते हो, इसमें आप एक्वायर करते हो एक या फिर एक से ज्यादा सिमिलर बिजनेस ऑपरेटिंग्स एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन मार्केटिंग चेन। मतलब आप जो है या तो लाइक ऐसे बिजनेस को आप एक्वायर करते हो, या तो वो आपकी कॉम्प्लीमेंट, जिनके प्रोडक्ट्स आपके बिजनेस से या तो कॉम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है, या फिर वो उसके बाय प्रोडक्ट हो, या फिर आप जो अपना टेकिंग ओवर कॉम्पिटिटर्स जो प्रोडक्ट है उसका वो ले लेते हो। ठीक है, तो इससे आप क्या करते हो, ये जो चीजें जो होती हैं लाइक जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हो गए या बाय प्रोडक्ट्स हो गए या फिर टेकिंग ओवर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट जो हो गए, ये आपका सेम जो प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग चेंज होता है सेम रहता है। मतलब आपका प्रोडक्शन मार्केटिंग चेंज होती है वो डिफरेंट नहीं होती है। जो आप जिस चीज में काम कर रहे हो उसके जैसे लोग जो होते हैं ना, उन जैसे से ही आप अपना मतलब इसमें करते हो, आप उन जैसे लोग के साथ ही आप इंटीग्रेट करते हो, तो उस चीज को आप बोलते हैं। अब जब वो अब इसमें डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ, मतलब सपोज अभी एक फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फेसबुक ने व्हाट्सएप के साथ उसने मतलब क्या किया, उसने हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेशन कर लिया। मतलब क्या हुआ ना, अब ये है फेसबुक था, ठीक है, उसने सोचा कि सबसे बड़ा लाइक उसे जब व्हाट्सएप आया था ना, तो सबसे बड़ा उसका कॉम्पिटिटर व्हाट्सएप बन चुका था। लाइक आप अगर ये व्हाट्सएप अगर मार्क जुकरबर्ग ने अगर ये व्हाट्सएप नहीं लिया होता ना, उसने नहीं खरीदा होता, तो पता नहीं अभी आई थिंक उसको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, व्हाट्सएप अलग ही चला जाता। जैसे ही उसने आया था उसने बहुत ज्यादा लाइक अपना मार्केट पे एक बहुत बड़ी होल्ड पा लिया था। तब उसने फिर रियलाइज किया कि हाँ मतलब अगर मैंने इसको नहीं अभी एक्वायर किया तब मतलब वो चीज हो सकती है, उसकी खराब हो सकती है। तो फिर वो एक्विजिशन उसने किया। तो इससे क्या हो रहा है, अब इससे मार्क जुकरबर्ग का अपना जो बिजनेस था फेसबुक से वो एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, एक्सपेंशन कैसे हुआ, डाइवर्सिफिकेशन से हुआ। ठीक है, वो इंटेंसिफिकेशन से नहीं हुआ। ये मतलब इसने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करा, इसने कोई मार्केट पेनिट्रेशन नहीं करी है, इसने अपना कोई अपना मार्केट डेवलप नहीं किया, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसने क्या करा है, इसने डाइवर्सिफाई किया। डाइवर्सिफाई मतलब इसने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया था। तो व्हाट्सएप क्या था इसका, व्हाट्सएप था इसका कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो चीज था। अगर वैसे वरना कोई कॉम्प्लीमेंट्री कोई प्रोडक्ट अपना कोई एक्वायर कर ले या फिर कोई बाय प्रोडक्ट कर ले, उसको भी हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। उसके बाद फिर कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, इसको भी मैंने मतलब रीड कर लिया था, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या है इसमें। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, ये भी एक तो रिलेटेड चीज है। मतलब इसमें भी जो आपको नया प्रोडक्ट जो बनने वाला होगा वो रिलेटेड वाले प्रोडक्ट से ही मतलब वो बनेगा। इसमें अब क्या होता है ना कि
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इन कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन न्यू बिजनेस इज लिंक टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस। जो न्यू बिजनेस जो है वो दैट इज लिंक टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब कैसे? थ्रू प्रोसेस, टेक्नोलॉजी या फिर मार्केटिंग। या तो वो प्रोसेस से होगा या फिर जो टेक्नोलॉजी से होगा या फिर वो मार्केटिंग से होगा। प्रोसेस से कैसे हुआ? सपोज अमूल ने सोचा कि वो मिल्क तो बना ही रहा है, तो मिल्क से अब वो घी भी अपना स्टार्ट कर सकता है, अपना वो पनीर या फिर अपने आइसक्रीम या अपना डेयरी, मतलब डेयरी में तो ये सब चीजें आती हैं, तो उसने वो भी स्टार्ट कर दिया। तो लाइक उसने अपना प्रोसेस किया कि मिल्क को प्रोसेस करके उसने लाइक घी बनाया, घी को प्रोसेस करके वॉट एवर उसने पनीर बनाया, फिर जो भी आइसक्रीम्स बनाई उससे जो भी करा उसने, ठीक है। तो वो चीज आपकी आ जाती है, वो आपको क्या बोलते हैं? ये आपका क्या हुआ? डाइवर्सिफिकेशन हुआ ना। इसमें भी तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ना। डाइवर्सिफाई मतलब इसमें भी एक्सपेंशन हुआ ना, कि अभी अभी आप सिर्फ एक मिल्क बना रहे थे, अभी आप सिर्फ मिल्क सेल कर रहे थे, अब मिल्क के साथ आप और सब चीजें भी सेल कर रहे हो। दैट इज लाइक एन एक्सपेंशन ऑब्वियसली। और इसके साथ ये कौन सा एक्सपेंशन हुआ? ये हुआ आपका डाइवर्सिफिकेशन से, ठीक है। प्रोसेस वाला पॉइंट तो आई थिंक सबको क्लियर होगा ही। अब बट टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग, इसमें भी हम पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रोसेस का इसका ये जो है आपका कॉन्सेंट्रिक, इसका मतलब सिर्फ प्रोसेसिंग से नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे सपोज क्रूड ऑयल से आपने उसको प्रोसेस करा, उसको डीजल या पेट्रोल बनाया, उसके बाद ऐसा सिर्फ वो प्रोसेसिंग का ही नहीं है। ये प्रोसेसिंग के अलावा भी इसके अलावा दो इसके फैक्टर्स और हैं। इसका क्या है? एक टेक्नोलॉजी और एक मार्केटिंग है। टेक्नोलॉजी कैसे? सपोज आप ना कंप्यूटर्स बना रहे थे, अब कंप्यूटर्स से आपने लैपटॉप बनाना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई प्रोसेसिंग हो रही है। इसका मतलब क्या होता है कि ना आपका सेम कस्टमर बेस है, आप वही कस्टमर को ही आप मतलब कुछ और दे रहे हो जो उससे रिलेटेड हो, उस जैसा ही हो, ठीक है। जैसे मिल्क था तो मिल्क से रिलेटेड, मिल्क के जैसा ही कौन सी चीज थी? घी हो गया सपोज, या फिर उसकी आइसक्रीम्स हो गई, तो वो उस जैसा है, उसका कस्टमर बेस सेम रहा। ऐसे ही आप टेक्नोलॉजी में अगर बात करते हो तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें आप कंप्यूटर अगर बेच रहे हो तो कंप्यूटर के साथ साथ आपने लैपटॉप भी बेचना स्टार्ट कर दिया, फिर टैबलेट या आईपैड जो भी आप बेचना स्टार्ट कर दिया, तो वो कस्टमर बेस सेम है। और मतलब वो भी जो भी ये जो आइटम्स जो मैंने आपको बताए ये भी काइंड ऑफ सेम ही है ना। मतलब थोड़ा लाइक कंप्यूटर से उसका थोड़ा मिनी वर्जन आपका वो हो गया लैपटॉप से मिनी वर्जन उसका टैबलेट या फिर आईपैड जो भी बोलते हो वो हो गया आपका, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? द न्यू प्रोडक्ट इज अ स्पिन ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज एंड प्रोडक्ट। तो ये हो गया। फिर करंट ऑपरेशंस की आप जो उससे बेनिफिट लेते हो। फिर लिंकेज है, ओके। उसके बाद फिर अब क्या हो जाता है? अब एक चीज और, मतलब वो क्या है आपका? वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। तो इसमें आपका डिफरेंस क्या है? अगर आप लाइक कंफ्यूज हो सकते हो कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन और ये कॉन्सेंट्रिक में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है? देखो, जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन था ना, उसका ना आपका प्रोडक्ट जो चेन जो थी वो प्रोडक्ट चेन के अंदर ही था। मतलब लाइक उसका मैन्युफैक्चरिंग और उसका सेलर उसके बीच का वो था ना, उसमें था वो एरिया में। तो उसने अब दोनों चीजों को एक्वायर कर लिया, बट वो उसका प्रोडक्ट चेन सेम ही है। बट इसमें अब क्या हो जाता है ना, वर्टिकली लिंकेज से हम बाहर हो जाते हैं। जब आप ये कॉन्सेंट्रिक जब करते हो तब आपका वर्टिकली से डिफरेंट हो गया। मतलब अब आपका ये नहीं कि आपका जो मैन्युफैक्चरर या फिर जो आपका सेलर है उसका आप कुछ एक्वायर कर रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो? उस जैसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हो उसका भी डिफरेंट होंगे, लाइक मैन्युफैक्चरिंग और जो भी है सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो आपका क्या हो गया? ये वर्टिकली लिंकेज वाला एरिया था, उससे आप बाहर निकल गए, ठीक है। कॉन्ग्लोमेरेट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही लिया है, तो जस्ट रीड इट। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेंशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे मर्जर और एक्विजिशन में क्या है। तो पहले आप मर्जर के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ओके। सो एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। सो पहले हमने क्या पढ़ा? डाइवर्सिफिकेशन। इन दैट पहले हमने क्या पढ़ा? डाइवर्सिफिकेशन पढ़ा, जिसमें हम लोग ने क्या करा था? अपना एक्सपेंड किया था, जिसमें डाइवर्सिफाई किया था। हम लोगों ने किसी के साथ एक मर्ज नहीं किया था। मर्जर में क्या होता है? एक कंपनी एक्स है, एक कंपनी वाई है, दे मर्ज टुगेदर, दे शेयर द रिसोर्सेज, देयर नॉलेज एंड देयर एक्सपर्टीज, एंड they create a new venture, not venture actually, they create a new company, जिसकी वजह से वो लोग अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। ये होता है मर्जर। डाइवर्सिफिकेशन में हमने ऐसा किसी के साथ कुछ नहीं करा था। डाइवर्सिफिकेशन में हमने बस क्या किया था? हमने जो अपना लाइक प्रीवियस था उसको भी अपने आप ही हमने कर रहे हैं, आगे वाला अपने आप कर रहे हैं, अपने जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी मतलब मार्केट में सेल कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे थे। बट वहां पर किसी के साथ हम मर्ज नहीं कर रहे थे, ठीक है। मर्जर में क्या होता है? मर्जर में एक तरह से आपका आरओसी में जब मर्जर होता है ना, तब आपके दोनों कंपनीज का नाम आता है एक साथ, ठीक है। इट्स नॉट लाइक अलायंस। अभी आगे मैं आपको बताती हूँ अलायंस क्या होता है।
मर्जर इज लाइक इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि एक तरह से मैरिज है वो आपका, जिसमें आप जो है ना क्या करते हो। हाँ यहाँ पर कहाँ लिखा था, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, जो कि यू नो म्यूचुअली, जिससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस कंसीडर मर्जर एंड एक्विजिशन प्रपोजल इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो दैट द मैरिज विल बिकम म्यूचुअली बेनिफिशियल, अ हैप्पी एंड लास्टिंग अफेयर। तो मतलब एक तरह से मैरिज की तरह ये बिल्कुल अगर हो जाता है तो भाई फिर तो सारा लाइक लीगली एक तरह से हो जाता है। ये अभी आगे हम पढ़ेंगे अलायंस में क्या होता है, अलायंस में ऐसा कुछ नहीं होता, बट इसमें हम लोग ने ये पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर रखा है आपने कि मर्जर में, जैसे मैंने आपको जो बताया बस यहाँ पर ये लिख रखा है, फाइनेंशियली सब कुछ है। एक्विजिशन के बारे में बता रखा है इन्होंने, एक्विजिशन में ये बता रखा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन एक वीक ऑर्गेनाइजेशन को मतलब एक्वायर कर लेती है, ठीक है। तो उसके बारे में उन्होंने ये बता रखा है। तो ये इट्स ईजी नाउ। अब टाइप्स ऑफ मर्जर आप पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ, ठीक है। यस, सो टाइप्स ऑफ मर्जर। तो देखो टाइप्स में सबसे पहले क्या आता है, अब हम मर्जर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपने माइंड में जस्ट क्लियर करना है कि हम मर्जर पढ़ रहे हैं, मतलब दो कंपनीज टुगेदर आ रही हैं, कोई किसी को एक्वायर नहीं कर रहा है यहाँ पर। लाइक इसमें जो एक्विजिशन का जो पॉइंट जो लिखा है ना, दैट इज ओनली फॉर सेइंग। अगर ढंग से देखो तो जो हमने जो पहले जो पढ़ाई वाला डाइवर्सिफिकेशन, उसमें ही एक्विजिशन ज्यादा होता है, इसमें नहीं होता ज्यादा। लाइक उसमें अगर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड अगर डाइवर्सिफिकेशन में पढ़ोगे तो उसमें ज्यादा एक्विजिशन होगा। यहाँ पर सिर्फ एक्विजिशन जस्ट मतलब बोलने के लिए है ना। तो सबसे पहले अब हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है। हॉरिजॉन्टल मर्जर में हॉरिजॉन्टल मर्जर या कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं ना, उनके साथ आप मर्ज कर लेते हो। मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स को ही आप अपना मर्जर मतलब मर्ज करके उनके साथ एक कंबाइन आप अपना ऑपरेट करते हो अपना बिजनेस, ठीक है। लाइक आइडिया वोडाफोन, आइडिया ने वोडाफोन के साथ उसने मर्ज किया था। अब ये नहीं है कि आइडिया ही है वो या फिर वोडाफोन ही है, किसी ने एक्वायर नहीं करा, किसी ने लाइक अपना बिजनेस ऐसे एक्सपेंड नहीं करा कि जिसमें दूसरे वाले का बिजनेस उन्होंने ले लिया हो। लाइक दिस इज नॉट डाइवर्सिफिकेशन, दिस इज मर्जर। मर्जर मतलब उन्होंने अपने स्किल्स, अपनी सारी जो एक्सपर्टीज और अपने टेक्नोलॉजीज को दोनों को एक साथ लेके आ गए हैं। अब उनका प्रॉफिट वगैरह वो उस हिसाब से उनका शेयर होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट कंपटीशन का बात हो गया। टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उसके लिए हम लोग ये करते हैं, ठीक है। ये लोग मतलब जो लोग उन्होंने करा है, एक और भी आप ले सकते हैं जैसे एग्जांपल, दैट इज मारुति सुजुकी। मारुति और सुजुकी, मारुति इंडिया की ब्रांड थी, सुजुकी आई थिंक जापान की थी, तो इन लोगों ने मर्ज किया, ठीक है। उसके बाद फिर वर्टिकल मर्जर। अब वर्टिकल मर्जर में क्या होता है, वर्टिकल मर्जर जैसे हमने पढ़ा था वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन जिसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड था, वैसे ही वर्टिकल मर्जर में भी बैकवर्ड होता है मर्जर, एक होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन से होता है और एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उसके हिसाब से आपको समझाती हूँ। दैट इज सपोज डिज्नी और पिक्सआर्ट, ठीक है। डिज्नी और पिक्सआर्ट, तो पिक्सआर्ट जो है ना वो सारे लाइक जितने भी ऐसे प्रिंसेसेस हैं या फिर जितने भी जो स्केचेस जो कार्टून्स हैं वो पिक्सआर्ट बनाता है, ठीक है। और डिज्नी क्या करता है, उसको एनिमेशन फॉर्म में डालता है, उसको लाइक पूरा का पूरा उसको मतलब पूरा पब्लिसिटी करता है उसकी, ठीक है। उसको पूरा मतलब उसका एक स्टेज देता है जिसपे वो आता है। पहले ये दोनों अलग थे, बट उन्होंने सोचा कि ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक नीड, अगर डिज्नी क्या ही अगर वो दिखाएगा, कौन से कार्टून दिखाएगा अगर उनका स्केच ही नहीं बना होगा, तो वो पिक्सआर्ट के लिए अब हम लेते हैं सपोज डिज्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, ठीक है। तो डिज्नी इधर है और पिक्सआर्ट इधर है, तो क्या हुआ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बट इफ यू सी पिक्सआर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या होगा, उनके लिए फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। मतलब उनको अब उन्होंने मर्ज कर लिया, वो कुछ हुआ तो नहीं है, तो मर्ज में क्या हुआ कि उनके लिए अब क्या हो गया कि हाँ अब जो है हमने फॉरवर्ड जो था हम लोग कहीं और बेचते, तो इसकी जगह हमने सिर्फ मतलब डिज्नी के साथ ही मर्ज कर लिया। तो अब जो भी होगा हम लोग जैसे हम जो सप्लाई जैसे भी करेंगे तो उसके साथ ही करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से उन्होंने उस पर होल्ड पा लिया। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग बट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लिखा हुआ है। इंक्रीज सिनर्जीज के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। सप्लायर प्रोड्यूसर्स और बैकवर्ड, ठीक है, ये हो गया। फिर फाइनेंशियल इकोनॉमीज के लिए ओके एडवांटेजेस पोजीशन में होंगे। कोजेनरिक, अब पहले वाले में क्या था कोसेंट्रिक, इसमें क्या है कोजेनरिक। कोसेंट्रिक और कोजेनरिक अलग है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज अलग है, बस अभी याद रखना, ठीक है। कोजेनरिक में क्या होता है कि आप ना अपना सपोज आप टीवी बेच रहे थे अभी, तो आप टीवी के साथ आप फ्रिज भी बेचोगे, उसके साथ आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब और भी जितने भी आइटम्स है उनको बेचोगे। जैसे उसमें था ना आपका जैसे कोसेंट्रिक में क्या था कि आप जो है मतलब अपना जो कस्टमर बेस जो है सेम है वो आपका, और उसमें आप टेक्नोलॉजी प्रोसेस और ये सब करके करते हो। बट इसमें क्या है, इसमें वो मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। उसमें कोई ऐसे प्रोसेसिंग नहीं होती किसी चीज की, यहाँ पर मर्ज हो जा रहे हैं। तो मर्ज क्या है कि यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इन कोजेनरिक मर्जर टू और मोर
merging organizations are associated in some way or the other related to the production process, या फिर production process से हो जाएंगे merge, या फिर business market से, या फिर और basic जो required technologies से हैं, ठीक है। या फिर आप ये देखो बैंक्वेट हॉल्स और केटरिंग वाले होते हैं, ठीक है, वो लोग भी बहुत ज्यादा मर्ज कर लेते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि अब उनका क्या है, अभी किसी की सपोज वेडिंग आई तो वो लोग ही वही लोग जो है मतलब जैसे जिसकी शादी जैसे बैंक्वेट हॉल में जहां पर वो है वो केटरिंग वाले सब एक साथ ही मिलेंगे, वो मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। और भी आपको क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, सपोज आप लाइक जैसे आप कोई रिटेल जैसे वो होते हैं आउटलेट्स कुछ उसमें क्या होता है, उसमें हर कस्टमर के लिए सपोज मिल जाता है, लाइक हर ब्रांड्स का हो जाता है, तो एक तरह से वो मर्ज हो जाते हैं। या फिर लाइक आप ये कह सकते हो, उसको पता नहीं वो है या नहीं अप्रोप्रिएट वो एग्जाम्पल, बट ये तो है ही जो हमने बैंक्वेट और केटरिंग का करा, ये सब चीज तो है ही, ठीक है। तो ये हो गया। फिर कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, कॉन्ग्लोमरेट मतलब कॉन्ग्लोमरेट आ गया तो मतलब समझ लो अनरिलेटेड है, ये सब रिलेटेड थे एक दूसरे से बट ये अनरिलेटेड हो गया। अब टाटा स्काई है, टाटा डीटीएच में पहले नहीं था, अब टाटा और स्काई अलग अलग कंपनी है। टाटा स्काई इज नॉट अ कंपनी ऑफ टाटा, ठीक है। ये एक चीज ये थोड़ा शायद कुछ लोग को ना पता हो, बट स्काई अलग है, टाटा अलग है, दे हैव मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म टाटा स्काई, ठीक है। तो ये टाटा का क्या ही मतलब इससे कनेक्शन होता डीटीएच का, तो एक तरह से आपका कॉन्ग्लोमरेट हो गया, ठीक है। अब एडवांटेजेस, अब ओके सो अब नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। आप ये वाला टॉपिक पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ, देन वी विल जस्ट फिनिश इट। सो एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस, तो अलायंस में क्या होता है, अलायंस इज नॉट लाइक अ मर्जर, अलायंस इज नॉट लाइक परमानेंट जिसका एक आरओसी होता है, ठीक है। आरओसी में मतलब उनको एक जैसा लिया जाएगा, मतलब वो नहीं है अलायंस। अलायंसेस में दे आर इंडिपेंडेंट बट दे विल कम टुगेदर टू गेन द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्ट टू गेन द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज और वट एवर, उनका जो भी ऑब्जेक्टिव जो होगा उसको वो गेन करने के लिए करेंगे। सपोज मैकडी एंड कोको कोला, ठीक है, कोक। तो इसमें क्या है ना कि मैकडी और कोको कोला की अगर आप बात करो तो मैकडी की वो लोग कोई मर्ज तो है नहीं, ना ही वो अपने प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं एक साथ। बस ये है कि अब जब वो मैकडोनल्ड्स में कोको कोला का मतलब वो जैसे ड्रिंक जब वो बोलेंगे क्या मतलब मिलना है तो उसमें कोको कोला मिलेगा, ठीक है। उनकी जितने भी वैरायटीज हैं कोक की वो सारी मिलेंगी, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको यहाँ पर जो अपने प्रॉफिट्स को मतलब ऐसे ना बिल्कुल आपको वो करना पड़ेगा, अपना शेयर करना पड़ेगा, या फिर आपको अपने सीक्रेट्स बताने पड़ेंगे कि मैकडी विल नॉट टेल कि क्या उनका रेसिपी है क्या है, वो सब कुछ नहीं बताने वाला है वो, ठीक है। वो कोको कोला का अलग है, वो अलग है, बस वो एक साथ आके काम करने वाले हैं, बस ये चीज समझ लीजिए आप, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट और सेपरेट एंटिटीज हैं, इसके एडवांटेजेस भी हैं काफी और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। एडवांटेजेस में क्या है कि इनकी कॉस्ट कम हो गई, आपको अगर अलग से बेचने की अपना ट्राई करेगा इतना नहीं बिक सकता, ठीक है, तो वो उससे उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। इसमें इसको स्ट्रेटेजिक मतलब बहुत ज्यादा मिल जाता है। लाइक अगर बजाज और केटीएम है, बजाज केटीएम जो है वो बजाज की है, ठीक है। तो इसमें क्या है, राइवल्स कैन कम टुगेदर टू कॉर्पोरेट इंस्टेड ऑफ कम्पीट। इससे वो पता है क्या करेंगे, वो अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कर देंगे, फ्यूचर जो उनकी अपॉर्चुनिटीज और डेवलपमेंट्स जो हैं उनके साथ उनका मतलब फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज उनको ज्यादा मिल पाएंगी। पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिकल में भी ऐसे ही है कि जेटवेज और इतिहाद एयरवेज जो है उसमें भी इनका ये है कि लाइक आई थिंक कुछ कंट्री का कुछ चीज है यहाँ पे पॉलिटिकल की, यहाँ तक बस जेट एयरवेज जाएगा, उसके बाद यहाँ से इतिहाद जाएगा, ठीक है, तो वो चीज है कुछ। और स्टारबक्स और टाटा, मतलब अगर स्टारबक्स को यहाँ पर आना था वो टाटा के थ्रू आया, ठीक है। तो मतलब अगर टाटा के साथ अगर वो अलायंस नहीं करता, ठीक है, तो उसको एकदम से आने में इंडिया के लिए कस्टमर्स को जानने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक भी हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल भी बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज भी ये है कि अब क्या है ना कि कुछ ना लाइक पता चल जाती है कि क्या उनके सीक्रेट्स हैं क्या है। तो कॉम्पिटिटर जैसे है ना, अगर सपोज जैसे गूगल है, गूगल इज लाइक कि बहुत ही ज्यादा उसको ये है कि वो कुछ भी एक्वायर कर लेता है। लाइक यूट्यूब था पहले, वो अलग था, बट अब गूगल ने उसको उसके साथ उसने अलायंस वगैरह कुछ करा होगा, बट फिर पता नहीं मेरा एग्जांपल ठीक है या नहीं, बट ये है गूगल जो है कुछ भी मतलब अगर जिसके साथ भी वो थोड़ा सा भी जुड़ता है उसको पूरा एक्वायर ही कर लेता है, उससे मतलब खत्म, उसको सप्रेस ही करना चाहता है वो चीज है। तो वो थोड़ा गलत हो जाता है इसमें। आप अगर स्ट्रेटेजिक अलायंस में देखो तो उनकी इंडिपेंडेंस थोड़ी बहुत इफेक्ट हो जाती है, उनके मे बी वो लोग जो है उनकी थोड़ी सी आइडियोलॉजीज डिफरेंट हो जाए तो उनका थोड़ा वो चीज हो सकती है कि लाइक डिसएडवांटेज हो गया। उनके प्रॉफिट्स का जो शेयरिंग है वो चीज में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एग्रीमेंट का कुछ है, पोटेंशियल कॉम्पिटिटर बन सकता है वो आगे जाकर वही चीज,
ठीक है। तो वो ये सब चीजें थी, ये सब चीजें आपकी थी यहाँ पर इसमें स्ट्रेटेजिक अलायंस में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज हमारा वो हो गया एक तो डाइवर्सिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन, मर्जर। अब यहाँ पर अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके ओके, जस्ट सॉरी, आई थिंक मैंने आपको गलत एग्जांपल दे दिया था। डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अलायंस के बारे में भी हमने पढ़ लिया, दैट वाज अ सेपरेट यूनिट इन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के टाइप्स थे वो, ठीक है, वो अलग था। बट अब जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था ग्रोथ स्ट्रेटेजी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं रिट्रेंचमेंट या फिर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो जस्ट रीड इट, उसके बाद फिर हम इसको पढ़ के आई थिंक बस फिर होने वाला है हमारा। ओके ओके, सो रिट्रेंचमेंट और टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, इसमें क्या होता है, देखो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है कि अभी कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो अच्छा नहीं कर रहा है, उसका कैश फ्लोज उसके कम हो चुके हैं, वो नेगेटिव ट्रेंड हो चुका है, मतलब नेगेटिवली ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, पब्लिसिटी उसकी नेगेटिव हो चुकी है, यू नो कस्टमर्स बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, उसके मार्केट शेयर कम हो रहा है, उसका टॉप मैनेजमेंट ने कुछ फ्रॉड कर दिया। तो उस टाइम पे ऐसे सिचुएशन में मतलब वो एक तरह से उसकी सिचुएशन खराब होती जा रही है दिन पे दिन, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई जो मतलब सीईओ या फिर जो भी होगा वो ये सोचेगा कि बस बंद कर दो। अब ट्राई तो करेगा ना वो इंसान, मतलब वो एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशन वो ट्राई तो करेगा, कुछ करे, कुछ अपने इंटरनली वो थोड़ा इम्प्रूव करे, या फिर किसी जगह जहां पर लॉस मेकिंग जो यूनिट्स हैं उसको बंद करे, कुछ ना कुछ करके वो कम बैक तो करना चाहेगा ना। उसको ही बोलते हैं बस रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है, यही होती है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बस बताया, मतलब ऐसा नहीं, इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो ऐसा नहीं है कि आज से जिसने भी इस सिचुएशन में कोई कंपनी आई है तो वो कभी रिवाइव नहीं हो पाई है, हुई है कंपनी रिवाइव। एक है जैसे रॉयल एनफील्ड, वो कंपनी जो थी उसका भी एक टाइम ऐसे ही आ गया था, वहां पर उसके कस्टमर्स वगैरह नहीं बढ़ रहे थे, बट फिर उन्होंने कुछ करा, उन्होंने अपने कुछ जो अभी हम पढ़ेंगे एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड में, उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजी लगाई, उन्होंने कुछ ना कुछ मतलब अपनी क्वालिटी, जैसे वो बहुत ज्यादा, जैसे एक बुलेट जो थी एक टाइम पे कुछ ज्यादा ही मतलब वो बहुत हैवी हो चुकी थी, थोड़ा उसको लाइट करा जिससे उसके कम से कम सी कॉस्ट थोड़ी कम हो, थोड़ी रीजनेबल हो, ठीक है। उसमें थोड़ा उसको लुक दिया इतना अच्छा, उसके इतने सारे इवेंट्स कराता है। अगर आप देखो रॉयल एनफील्ड अपना पूरा एक प्रोग्राम कंडक्ट कराता है जिसमें वो सारे बाइकर्स को ऐसे ना वो मतलब कहता है कि आप अपना करो, आप यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओ, पूरा ऑर्गेनाइज कराता है ये चीज। तो एक तरह से ये क्या हो गया, ये एक इनसे एडवर्टीजमेंट हो रही है, इससे मतलब इनका ऑब्वियसली इससे और लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर उनकी सेल तो बढ़ेगी ना, उनकी उसकी जो बुलेट जो उस चीज की। ऐसे करके उन्होंने कम बैक करने का उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने बिल्कुल ऐसे, उनका एक टाइम पे ऐसा आया था कि उनकी नहीं बिक रही थी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने बंद कर दिया, तो वही चीज है। बट और ऑन द अनदर हैंड अगर आप देखो कि किंगफिशर था, ठीक है, किंगफिशर उसकी भी पोजीशन बहुत खराब हो चुकी थी, उसने भी करा था, उसने रिट्रेंचमेंट, उसने ये वाली स्ट्रेटेजी लगाई थी, बट वो अब नहीं है, वो लिक्विडेट हो चुकी है अब, ठीक है। तो ये ऐसा चीज है कि यहाँ पर लाइक रिवाइव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज फॉलोड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटी, इट इज डन थ्रू an attempt to find out the problem areas and diagnose and the causes of the problem, ठीक है। फोकस ऑन द वेज कि क्या मतलब फोकस कैसे हम मतलब फिर से रिवाइव कर सकते हैं, और या फिर कट ऑफ कर दो अपने जो लॉस मेकिंग यूनिट्स एंड डिविजन है, एसबीओ है। तो इसमें रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या करो, टर्न अराउंड करो। टर्न अराउंड करने में क्या होता है, टर्न अराउंड में क्या होता है, आप इंटरनली अपना चेंज करो, ठीक है, और उसके बाद फिर आप अपना वापस कम बैक लाने की कोशिश करो। बट अगर टर्न अराउंड से भी कुछ नहीं हो रहा, अपने इंटरनली से कुछ नहीं हो रहा, तो आप डाइवेस्ट करोगे। डाइवेस्ट में क्या होता है कि आप अपना जो लॉस मेकिंग एरिया जो है उसको आप शट डाउन कर देते हो, ठीक है, प्रॉपरली उस यूनिट्स को हटा देते हो, और उसके बाद फिर आप अपना मतलब और जो यूनिट्स है उसमें अपना इंटरनली कंट्रोल वगैरह करके आप अच्छे से करते हो। बट अगर ये डाइवेस्टमेंट से भी अगर वो उसमें कुछ नहीं हो रहा तब आप लिक्विडेट करते हो, ठीक है। तो इसमें इसके टर्न अराउंड के वो भी हैं जो एक्शन प्लान फॉर दिस, तो वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एक बार देखते हैं टर्न अराउंड में है क्या, कि रिट्रेंचमेंट मे बी डन आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली। फॉर इंटरनल मतलब ऐसा कि इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनली भी हो रहा है। बट मतलब टर्न अराउंड में हम देखते हैं पहले क्या होता है, रुक जाओ मैं भी एक साथ पढ़ रहे हैं। तो फॉर इंटरनल रिट्रेंचमेंट टू टेक प्लेस एम्फोसिस इज लेड ऑन इम्प्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी। देखो
जो मैंने आपको बताया था इंटरनली स्ट्रॉन्ग करना वही है, वो इंटरनली जब स्ट्रॉन्ग करते हैं उसको बोलते हैं हम टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, ठीक है। दीज सिग्नल्स मैंने आपको इस सिग्नल्स पहले ही बता दिए थे स्टार्टिंग में, इसको आप पढ़ लेना। एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड, इसको रीड करते हैं हम भी, आप भी, ओके या हाँ। ओके, सो एक्शन प्लान क्या होता है? एक्शन प्लान क्या होता है? सबसे पहले आप लोग स्टेज 1 होती है, इसमें आप क्या करते हो, आप अपना असेस करो आपकी करंट प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले देखो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आपका इतना लाइक मार्केट शेयर इतना डाउन हो रहा है, किस वजह से आपके कस्टमर्स आपके लूज हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप वो असेस करो, ठीक है। तो उसकी रूट कॉज पे आप पहुंचो। सेकंड स्टेज क्या होती है? एनालाइज द सिचुएशन, डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान। अब आपको एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना पड़ेगा। हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था स्ट्रेटेजिक प्लान के बारे में, वो तो चलो वो प्लानिंग के बारे में था, वो छोड़ो, अलग है यार, उस पर उसको कनेक्ट मत करो, ये अलग करते हैं, ठीक है। सो सेकंड स्टेज में क्या रहता है कि एनालाइज द सिचुएशन को एनालाइज करो कि ओके सो दिस इज द सिचुएशन, यहाँ पर ऐसे कस्टमर इसलिए क्यों जा रहे हैं और मैं अपना क्या लाइक स्ट्रेटेजिक मूव ले सकती हूँ कि जिसकी वजह से मेरा कुछ टर्न अराउंड हो जाए। मतलब अभी मेरे को अपना इंक्रीज करनी है, अपना कम बैक करना है, तो क्या करनी चाहिए वो सब। तो एक अपनी पूरी एक आप अपनी सर्वाइवल के लिए एक अपनी बनाओ आप स्ट्रेटेजिक प्लान, ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या कर दो, उस प्लान को आप इम्प्लीमेंट कर दो। फोर्थ में जो है आप क्या करोगे, रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस। अब आप अपने जो बिजनेस जो है उसको रीस्ट्रक्चर करो। रीस्ट्रक्चर में क्या करोगे, आप अपने मार्केटिंग करो, आप उसमें अवेयरनेस बताओ कि क्या है आपके प्रोडक्ट में, कैसा है, लाइक अपने इंटरनली भी अवेयर करो लोगों को क्या उनको करना चाहिए, एंड एक्सटर्नली भी बताओ कि क्या कैसे उनको करना चाहिए, कैसे उनको सेल करना चाहिए, जैसा भी है मार्केटिंग वगैरह। प्रॉपर ट्रेनिंग दो अपने स्टाफ को, उनकी इंप्रूव करो, उनका वर्थ वगैरह जो भी है उनका कुछ क्वालिटी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, तो वो चीज़ है। फिफ्थ स्टेज क्या है, रिटर्निंग टू नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर अब डाइवर्समेंट स्टेज में क्या होता है कि आप अपना डाइवर्सिफाई कर दो। आई थिंक मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि एक आपका क्या लिखा है, डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स अ स्केल ऑफ लिक्विडेशन और ऑफ अ स्केल ऑफ लिक्विडेशन, बट सबका नहीं, ऑफ अ पोर्शन ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस का जो पोर्शन जो है वो, या मेजर डिविजन, या प्रॉफिट सेंटर, या फिर एसपीयू। डाइवेस्टमेंट इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ रिहेबिनेशन और आपका रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, एंड इट इज अडॉप्टेड व्हेन अ टर्न अराउंड हैज बीन अटेम्प्टेड बट हैज प्रूव्ड टू बी अनसक्सेसफुल, ठीक है। आपने टर्न अराउंड करा बट उससे कुछ नहीं हुआ, तो अब आप डाइवर्सिफाई कर दो, ठीक है। फिर आप मतलब ऐसे क्यों करोगे, अगर सपोज ना आप जो भी लाइक आपने जो सोचा था बिजनेस का वो आपका इंटीग्रेट नहीं कर रहा, जो आपके एक्शंस जो हो रहे हैं, तो उसका मिसमैच है। सपोज क्या लिखा है, द बिजनेस दैट हैज बीन एक्वायर्ड प्रूव टू बी अ मिसमैच, एंड जो आपने एक्वायर्ड किया, सपोज कोई आपने बिजनेस एक्वायर्ड किया, वो मिसमैच हो गया, उसको वो अच्छा नहीं हुआ उसके साथ, एंड कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद द कंपनी, या फिर परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज हो रहे हैं, या फिर सीवियरिटी ऑफ कंपटीशन हो गया, टेक्नोलॉजिकल अपडेशंस हो गए हैं, बेटर ऑल्टरनेटिव आ चुके हैं, तो उस चीज की वजह से आपको डाइवर्समेंट करना पड़ेगा। अब लिक्विडेशन क्या है, लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी जो है, जैसे मैंने आपको बताया था किंगफिशर, सुबेक्षा और भी है, मतलब विशाल मेगा मार्ट अभी नहीं हुआ है विशाल मेगा मार्ट का, बट मे बी हो जाएगा आगे टाइम पे। तो वो सब चीजें हैं। इन लोगों ने अब क्या करा, उन्होंने सबको ट्राई कर लिया, बट उनको लगा कि ये बहुत एक्सट्रीम केस हो चुका है, इट इज वेरी अनअट्रैक्टिव टू द कस्टमर्स नाउ, देन दिस लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी दैट विल बी अडेप्टेड, ओके। सो या ओके, सो ये हो चुका है। आपका इसका प्लीज कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ लीजिएगा, एंड मेजर रीजंस तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी में मीन्स क्या होता है ना कि लाइक अगर ना एक कोई कंपनी है, ठीक है, उसकी बहुत सारी जैसे एसबीयूज हैं, तो एक एसबीयू में उसको लगता है कि यहाँ पर उसको करना चाहिए अपना सपोज रिट्रेंचमेंट, ठीक है, वहां पर उसको लग रहा है कि ये बेकार काम कर रही है, इसको या तो अब टर्न अराउंड वगैरह कर लिया, देख लिया नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, उसने उसको बंद कर दिया। बट दूसरी ही जगह पे उसको लग रहा है कि ये वाला बहुत पोटेंशियल है उसका, लाइक एसबीयू जो दूसरा वाला एसबीयू है वहां पर बहुत पोटेंशियल है, उसको वो एक्सपेंड करता है, ठीक है। और फिर एक में समझता है कि अच्छा चलो ठीक है, ये वाला मेरा स्टेबल हो गया है, अब इसको मैं थोड़े टाइम के लिए स्टेबिलिटी पे रखता हूँ या रखती हूँ, ठीक है। तो फिर वो ये जो स्ट्रेटेजी जो है कि कंबाइन करो आप अपने सारे चीज, जो भी आपने 3 स्ट्रेटेजीज पढ़ी उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। सो गाइज दिस चैप्टर इज ओवर, फाइनली हो गया ओवर। देखिए मतलब इतना मुश्किल नहीं है, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आई फील, या सो गाइज आप लोग भी अच्छे से इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक देखा है देन थैंक्स अ लॉट, एंड गाइज प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, एंड सब्सक्राइब तो आप शायद कर ही लिया होगा अभी तक,
And okay, take care. Bye bye.